इसके वजह से मेरा फेज़ 2 हुआ ही नहीं चेक। ओके। तो और आई वाज लाइक उनके पेपर 2 में आई वाज एक्सपेक्टिंग 84, मतलब जो एनालिसिस एग्जाम आंसर्स की आते हैं उनसे मैंने एनालाइज कर रखा था Hello everyone, welcome to this session. Here we have CA Aditya Kumar with us, and he has recently cleared SEBI Grade A 2025 exam. He, as you know, as I already mentioned, that he has cleared the Chartered Accountancy CA examination and a whole lot of exams he has given as far as his preparation journey is concerned. So there's a whole lot that we can learn from his journey. First of all, congratulations Aditya on थैंक यू सर। clearing SEBI Grade A 2025 exam. First things first, how is the feeling and how was the feeling on the day of the result? Thank you, sir. Thank you for having me here, sir. And sir, while the feeling about it, I don't know how can I like express in it in words. It's like kind of a dream come true. I was waiting for it since last Yes. 2 years when I can see my roll number in that PDF. Like, Okay. and this time when I was opening it, like my hands were literally shivering. मैं office में था and वहाँ पे I couldn't even like yell or cry when I saw my roll number in that. I Okay. just saw it, stopped because मेरी colleagues साथ में थे. I just said कि यार मेरा हो गया. I'm going downstairs to call my home. And I went downstairs and then I said my parents कि पापा हो गया. And that time I was like feeling कि सच में तो हुआ. I just was checking roll number again and again कि मेरा ही तो है, कहीं मैंने गलत तो नहीं देख लिया. Yes. And that was like unbelievable kind of a moment. Okay. And now when I like feel it कि yes, I have qualified it. So yes sir, it feels very very good. Yes. So Aditya's journey is a sheer hard work where he gave multiple exams. He also appeared for the UPSC examinations, and he went into the regulatory body domain and gave multiple examinations. And with just it was a close call most of the time, I would say. We will get to know how he moved into this journey, how all of his education and the preparation journey went about, right? So this is a brief introduction of Aditya. Now moving into the first and foremost part, as you mentioned already that you have cleared CA already and you came into all of these fields. So would you mention about the educational background and how you came into all of the preparation with respect to the regulatory bodies? Okay, sir. So firstly, sir, I have like passed my school in 2015 in from my hometown, Begusarai, Bihar, and then I moved to Kolkata for pursuing my graduation as well as CA. I have done BCom honors, accounting and finance, and then after completing it, I also started pursuing CMA as well along with the CA course. I qualified both of them by the end of December 22 and started working as an associate in PwC India, which is kind of a dream organization for us CAs to be a part of. And also the domain in which I was working was the same in which I had my experience. I wanted to work internal audit. बट सर CA क्वालिफाई करने के पहले से ही लाइक मैंने सोच रखा था कि वंस आई क्वालिफाई देन आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. लाइक एटलीस्ट मैं दे के देख तो लूँ. इट्स नॉट लाइक कि जब मैं मे बी आई विल बी 35-40. आई थिंक कि अगर मैंने दे दिया होता तो मे बी हो जाता. तो ये पहले से ही प्लान में था. बट क्योंकि जस्ट क्वालिफाई किया था एंड लाइक ये स्टडी का जो सीन है चल ही रहा था, तो आई वांटेड कि थोड़ा काम कर लेता हूँ एंड देन वे विल लाइक नॉट लाइक चलो कुछ दिन तो इस पढ़ाई को आराम देते हैं. सो आई वर्क देयर फॉर 6 months एंड देन उसके बाद आई लेफ्ट इट टू प्रिपेयर फॉर UPSC. तो जब हम कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम ऐड रहते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो उनके लिए. तो सडनली इफ आई रिमेंबर कि फेब या मार्च में आई गेस एक सेबी का नोटिफिकेशन का PDF आया था उसमें. और उसके पहले आई वॉज नॉट अवेयर पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, क्या है, कुछ भी पता नहीं था. पर वो आया एंड लाइक उस टाइम आई वॉज नॉट वर्किंग प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो मैंने फिल कर दिया मार्च में. एंड उसके बाद मैंने उस समय ध्यान भी नहीं दिया ज़्यादा कि क्या है, ठीक है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो अभी पूरा फोकस उस पर रखते हैं. इट वॉज अराउंड March 24 का टाइम. एंड प्रीलिम्स उस टाइम बिकॉज इलेक्शंस थे तो जून में होने वाला था.
एंड वो हुए एंड आई कुडंट क्लियर इट उस टाइम बिकॉज मे बी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो. आई वोंट से कि हाँ मैंने बहुत मेहनत करी थी और इसलिए नहीं हुआ. आई न्यू कि चलो इस बार मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए हुआ, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर, क्वाइट लाइक गुड स्कोर फॉर दैट अटेम्प्ट. तो आई थॉट कि चलो अभी नहीं हुआ है, सो एक काम करते हैं कि जॉब ज्वाइन करते हैं, बिकॉज आई वांटेड कि मुझे 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो जाए. बिकॉज आई जस्ट नॉट वांटेड कि बस एक मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, उसके साथ साथ अगर बाकी वैकेंसीज आती हैं कुछ तो उनकी भी मैं प्रिपरेशन करूँगा, जिसमें लाइक कुछ वैकेंसीज ऐसे आती हैं जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं. सो आई वांटेड कि जैसे 6 मंथ्स मैंने कर रखा है तो मैं 6 मंथ्स करके एंड फिर छोड़ दूंगा, ताकि मेरे पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी रहे एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. And CB का एग्ज़ाम was due on 31st of July 24 phase 1 and 31st of August phase 2. तो उसकी अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन हुई नहीं थी, की नहीं थी. सो आई जस्ट वेंट ऑन यूट्यूब एंड देन सर्च कि CB एग्ज़ाम पैटर्न, CB एग्ज़ाम सिलेबस ऐसे ऐसे करके. एंड द फर्स्ट वीडियो विच कम्स अप इज एडुटैप्स वीडियो एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस कि क्या है कैसे है, फिर 1 by 1 देन की कट ऑफ क्या गया है, क्या कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है. Then I got to know, and then when I saw the subjects, so most of the subjects were like similar to me because I'm coming from a commerce background, like commerce and accountancy, costing, and Companies Act. Management and economics were quite new. Economics because CPT के बाद कभी आया नहीं था, and management हमने कभी पढ़ा नहीं था. Finance तो चलिए current affairs के अंदर आ जाता है, तो वो चीज़ें मुझे लगा कि चलो ये दे के देखते हैं, because मुझे लग रहा था कि I can do it. तो जो फेज़ 1 था उसके लिए तो एक तो टाइम नहीं था, बिकॉज मैंने जॉब उस समय ज्वाइन की थी मिड ऑफ जुलाई में. 17 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी और 31 जुलाई को फेज़ 1 था. सो उसके लिए आई जस्ट वेंट फॉर द मैराथन वीडियोज़ ऑफ एडुटैप फॉर लाइक रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, जैसे विष्णु दत्त सर पढ़ाते हैं क्वांट, वो सारे वीडियोज़ देख के रीजनिंग क्वांट की. पर फुल्ली फोकस आई वॉज ऑन लाइक फोकसिंग ऑन इंग्लिश, बिकॉज आई वॉज क्वाइट श्योर कि ये तो एटलीस्ट आई कैन हैंडल, बिकॉज क्वांट, रीजनिंग और जीके इनसे तो बहुत दिन हो गए हमें मतलब देखे हुए काइंड ऑफ. और जो पेपर 2 था उसके लिए आई जस्ट वेंट फॉर द मैराथन्स वीडियोस, जो एडुटैप के मैराथन्स आते हैं, महा मैराथन, सब्जेक्ट वाइज मैराथन्स, तो वो मैंने कवर किए थे एंड उनसे ही मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा, उतनी प्रिपेयर्ड भी नहीं की बट हो गया, ठीक है. फिर देर वॉज फेज़ 2 ऑन 31st of August. तो उस टाइम ये इशू था कि एक तो मैंने 10-11 महीने बाद ऑफिस ज्वाइन की थी, तो एक तो पढ़ाई मेरी अलग हो चुकी थी यूपीएससी के चक्कर में, ये पूरा छोड़ चुका था. एक्सेल यूज़ किए मुझे इतने दिन हो चुके थे. तो आई वॉज थोड़ा स्ट्रगलिंग वहाँ पे कि क्या करें कैसे करें. तो इस फेज़ 2 के लिए आई कुडंट प्रिपेयर वेल. तो जब एग्ज़ाम पास आने लगा तो आई थॉट कि क्या करें. आई टुक 2 दिन की लीव ऑफिस से एंड देन आई थॉट कि चलो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनको पढ़ते हैं. मैनेजमेंट को मैंने उस बार के लिए छुआ ही नहीं. आई डिडंट सो इवन अ सिंगल वीडियो. आई जस्ट वेंट फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, उसके सारे मैराथन्स ख़त्म किए, वो देखिए एंड जस्ट वेंट टू गिव द एग्जामिनेशन. और इंग्लिश, आई डू थिंक कि मेरा इंग्लिश जो राइटिंग है वो थोड़ा सही सा है, तो मुझे लगा कि ये तो चलो ठीक है कर लेंगे, एग्ज़ाम में देख लेंगे. तो एग्ज़ाम दिया एंड देखिए आई वॉज लाइक होपिंग कि चलो देखते हैं क्या होता है. पर जब रिज़ल्ट आया तो उसमें हुआ नहीं और उसमें था नहीं, और मार्क्स तो उस टाइम पता नहीं थे. तो वाज लाइक ओके चलो देखते हैं. पर ये मुझे समझ में आ गया कि दिस एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है, इट इज़ मेड टू बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर एंड आई कैन डू इट. क्योंकि जैसा मेरा एक पेपर गया इस प्रिपरेशन के साथ और जैसा मैंने जैसे पढ़ा एडुटैप के जो सब कुछ थे, तो आई नो कि लाइक कॉन्सेप्ट सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ से मैं प्रिपेयर भी कर सकता हूँ इसको आराम से. सो आई प्लान्ड दैट टाइम ओनली कि अब जब भी कोई रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आई एम गोना प्रिपेयर फॉर इट होल हार्टेडली. तो CB का आई गेस रिजल्ट 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था एंड 1 महीने के बाद के आसपास रिजल्ट आया था, सितंबर के बाद. तो जस्ट रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद ही मैंने रिजिग्नेशन डाल दिया था. मतलब एक तो रिजल्ट भी था, वो भी था, और मेरे 6 मंथ्स होने भी वाले थे, तो दोनों थे. तो जो मेरा लास्ट वर्किंग डे था वो 10th of Jan को था, और तब तक NPS की वैकेंसी आई हुई थी और उसका जो सिलेबस था वो क्वाइट सिमिलर था CB से, जस्ट एक सब्जेक्ट उसमें एक्स्ट्रा था विच वाज पेंशन. तो उसके लिए मैंने एडुटैप का कोर्स लिया था, फेज़ 1 + फेज़ 2 फुल कोर्स लिया था एडुटैप का. एंड उसके लिए आई लाइक प्रिपेयर्ड जो 1 महीने थे. आई वाज लाइक चलो अभी 1 महीने के लिए यूपीएससी को साइड करते हैं. इसका एग्ज़ाम वाज इन द आई गेस लास्ट वीक ऑफ Feb. 10th Jan को मैंने जॉब छोड़ी थी एंड अराउंड 15 Jan के साथ मैं लग गया था कि इसको पहले मैं निकाल के रखता हूँ. एंड मैंने यहाँ पे गलती ये करी कि
मैंने ये नोटिस नहीं किया कि एनपीएस में फ़ेज़ 1 में सेक्शनल कट ऑफ्स भी हैं जो कि सेबी के फ़ेज़ 1 में नहीं थे। तो आई वाज लाइक, एक तो उनका मार्क्स फाइनल में ऐड होना नहीं, आई जस्ट हैड टू क्वालिफाई। आई थॉट कि आई टुक इट वेरी इजली कि चलो इसको तो कर लेंगे। आई शुड प्रिपेयर फॉर पेपर 2 कि जितनी हो सके मेहनत लगा देता हूँ उस पर। तो उस पर जो मैंने क्लासेस लिए थे, लाइक शुरू किया, शुरू से लेके अंत तक सब ख़त्म किए, लाइक समरी सीट्स सारी देखी उनकी, फिर जो क्वेश्चंस थे उसके बाद वीडियोस देखने के बाद जो एमसीक्यूज हर एक चैप्टर वाइज हैं वो सारे ख़त्म किए। एंड आई वाज लाइक प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा पेपर 2 तो आई कैन हैंडल। इंग्लिश के लिए इस टाइम भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था उतने अच्छे से, आई वाज जस्ट इन माई कॉन्फिडेंस कि चलो ये तो कर लेंगे, देखते हैं। तो और एनपीएस का जो फ़ेज़ 1 था और फ़ेज़ 2 था दोनों एक साथ ही थे। तो आई डिड जो पेपर 2 हुआ था मेरा काफ़ी अच्छा ही हुआ था दोनों। इंग्लिश में उन्होंने कुछ नया पैटर्न ही लाया था उस टाइम, लाइक 2 एस्से और एक लेटर पूछे थे उन्होंने, लाइक नॉट लाइक ये प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बट लाइक डूएबल एसेज थे। आई डोंट रिमेंबर कि टॉपिक क्या था, बट अच्छे थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा। और उसके 2 दिन बाद ही मेरा एक पीएसयू का भी एग्ज़ाम था, कोल इंडिया का, वो भी मैंने दिया था एंड उसके मार्क्स भी 4 दिन में आ जाते हैं। सो आई गॉट 153 उसमें एंड लास्ट कट ऑफ वॉज 144। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो यहाँ नहीं तो एटलीस्ट एक जगह तो मैंने सिक्योर कर रखी है अपने लिए। तो आई वॉज कि चलो अब फ्री होके मैं यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपेयर करता हूँ, इधर का तो हो गया देखे। एंड फिर आई गेस 1 और 1.5 मंथ बाद एनपीएस का रिज़ल्ट आया था। तो उसमें माई रोल नंबर वॉज नॉट देयर एंड मार्क्स तो उस टाइम पता नहीं चलते। तो आई वॉज लाइक कि कहाँ गलती हो गई, आई नीड टू नो। तो फिर आई वॉज लाइक ओके चलो देखते हैं, अभी पहले एग्ज़ाम दे देता हूँ प्रीलिम्स का, ये देख लेंगे जब आएगा कि कहाँ प्रिपेयर करना है। और कोल इंडिया का भी रिज़ल्ट नहीं आया था, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि दोनों का होता है। तो जब प्रीलिम्स हो गया उसके बाद एनपीएस के मार्क्स आए थे, देयर आई सॉ कि जो फ़ेज़ 1 है उसमें जो कट ऑफ थी ओवरऑल वॉज 40, मुझे 56 आए थे। पर वहाँ जो सेक्शनल कट ऑफ थी रीजनिंग की दैट वॉज 8.5 और मुझे 7.5 आ रखे थे। तो वॉज लाइक कि इसके वजह से मेरा फ़ेज़ 2 हुआ ही नहीं चेक। तो और आई वॉज लाइक उनके पेपर 2 में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 84, मतलब जो एनालिसिस एग्जाम आंसर्स की आते हैं उनसे मैंने एनालाइज कर रखा था। इंग्लिश का तो वी कांट गेस बिकॉज इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, फिर पेपर 2 का तो मैंने देख रखा था। आई वॉज लाइक ओके इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो आई वॉज लाइक ओके नेक्स्ट टाइम से आई विल फोकस इन दिस ऑल्सो। पर स्टिल सेबी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आई वॉज ट्रस्टिंग इंग्लिश की चलो ये हो जाएगा। तो उसके बाद आई वॉज लाइक ठीक है, अब जो भी रेगुलेटरी बॉडी आने वाला है, और जो कि 1 महीने बाद ही आ गया था PFRDA, जिसमें आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज। तो आई जस्ट, क्योंकि मेरे पास नोट्स जो कोर्स मैंने एडोटैप का लिया था दैट वाज एक्टिव उस टाइम भी, सो मैंने उसको ही रिवाइज़ किया। पेंशन एनपीएस में भी था, PFRDA में भी था, तो आई हैड नॉट लाइक कोई ज़रूरत कि मैं फिर से कुछ कोर्स लूँ उसके लिए, क्योंकि सारा कॉम्प्रिहेंसिव उसमें दिया हुआ है। और मैंने अपने से भी जो कॉन्सेप्ट्स थे उससे नोट्स बना लिए थे देख देख के अपने क्विक रिवीजन के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम का जो टाइम रहता है 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए एक बार में रिवीजन करने के लिए आप सारे नहीं देख पाओगे। यू कैन गो थ्रू द मैराथन्स जो PDFs आप देते हो वो, या फिर आपके खुद के जो नोट्स आपने बना रखे हैं। तो आई जस्ट रिलाइड ऑन दैट PFRDA के लिए। फ़ेज़ 1 स्टिल आई विल से कि वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, इट वाज क्वाइट डूएबल फॉर मी, क्योंकि इंग्लिश में ही मुझे 25 में 25 थे, तो जस्ट 5 मार्क्स उधर, तो आई कुड क्लियर दैट। बाकी फ़ेज़ 2 के लिए आई रिलाइड अपॉन एडोटैप्स मैराथन्स एंड माई कॉन्सेप्ट नोट्स विच आई हैड मेड फ्रॉम द NPS कोर्स विच आई हैड बाउट। सो इसका एग्ज़ाम अराउंड 6 अक्टूबर को हुआ था आई गेस 2025 में, तो वो भी मेरा काफ़ी सही गया था। एंड जबकि पेपर जो इस बार PFRDA का आया था वो सब बोल रहे थे कि टफ़ था, आई गेस लास्ट टाइम से तो टफ़ था वो पेपर। एंड जैसे अंचित सर की वीडियो भी आई थी एग्ज़ाम एनालिसिस की, तो वो भी बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनका आंसर हमें भी नहीं पता। लाइक एक क्वेश्चन था उसमें कॉस्टिंग में कि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग काइंड ऑफ, कि कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एसेट, किसी को नहीं पता कि उसका आंसर क्या होने वाला था एग्जैक्टली, जब तक आंसर की तो आती नहीं है लास्ट में वो करके। तो दे वे सेइंग कि अगर आपको 70-75 के आसपास आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट द इंटरव्यू कॉल, मतलब अच्छे स्कोर हैं काफ़ी। एंड जो मेरी एनालिसिस थी मेरे हिसाब से जो मैंने देखा था, मेरे को 79.5 से 80 के आसपास आ रहा था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल कि मुझे कॉल आ जाएगी रिप्लाइड कि मैं इंग्लिश में
लाइक जो कट ऑफ है वो क्लियर कर जाऊँ, ऐसा ना हो कि उसमें ही कम दे दें मुझे, बिकॉज बहुत Yes. लोगों के साथ होता है ऐसा। मैंने हम्म, देखा है, दे आर स्कोरिंग गुड इन द पेपर टू, पर उनका इंग्लिश की वजह से कॉल नहीं आता इंटरव्यू का। ओके तो जब उसका रिजल्ट आया तो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, एंड सिंस आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, तो आई वॉज क्वाइट होपफुल कि मे बी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए मैंने एडोटैप का क्लास लिया। PFRDA का उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस का नया शुरू किया था, जिसमें 2 फैकल्टीज़ थे पोस्ट RBI या नाबार्ड से जो इंटरव्यूज़ कराते थे, और वो ऑनलाइन ही था बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन बिहार। तो मैंने वो कोर्स किया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल कि जब वो आप करते हो ना, ऐसे तो क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो काफ़ी लगता है कि सही है, मुझे आता है, पता है। पर जब Evaluation सामने हो से जाता है। कोई पूछ रहा होता है और आपको जज कर रहा होता है, तो वो हो जाता है अलग थोड़ा। पर एक और चीज़ है, जैसे इस बार तो एडवर्ट अपने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी शुरू किया है। आई वुड से दैट विल बी मच मोर यूजफुल यस ऑप्शंस। अब जैसे लोकेशन की वजह से मैं इस बार नहीं दे पाया, बिकॉज मैं बिहार में था, तो आके इट वाज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आई वुड हैव लव टू, मतलब आई थिंक कि वो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना सामने से जाके देने पे, वो ऑनलाइन yes. वाले पे थोड़ा कम होता है। पर अगर ऑप्शंस नहीं है तो वी कांट डू दैट, Yes. बट येस दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो Okay. एंड सर जो PFRDA का इंटरव्यू हुआ था, दैट वाज, आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट रेगुलेटरी इंटरव्यू, एंड मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके भी गया था कि चलो ठीक है, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, एंड आई एम अ क्वालिफाइड CA में, ऐसा तो थोड़ा ये भी मे बी एज मिल जाए ऐसा करके। और जब इंटरव्यू में गया तो फर्स्टली एक तो बिकॉज AA से मेरा नाम शुरू होता है, आई एम ऑलवेज द फर्स्ट गाय जिसका इंटरव्यू होता है। यस तो एक तो उसकी वजह से थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है कि कुछ नहीं पता क्या होना है। ऐसे जिनका सेकंड डे या थर्ड डे रहता है, उन्हें थोड़ा आइडिया तो मिल जाता है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसा पैनल है, कैसे वो लाइक बातें कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट हो आप तो थोड़ा तो रहता है। तो आई वेंट देयर इनसाइड, तो एक तो फर्स्ट टाइम का नर्वसनेस था ही पहले से, एंड आई डू थिंक कि उस माहौल में ऐसा होता है, जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो भी आप नहीं उतने अच्छे से बता पाते हैं उन्हें। तो ऐसे ही हुआ था, लाइक चेयरमैन सर ने कुछ ऐसा ही कुछ पूछा था NPS से रिलेटेड, मतलब पेंशन से ही रिलेटेड था, जो मैं वहाँ नहीं बोल पाया, बट बाहर निकल के मेरे दिमाग में स्टक आ गया कि अरे ये तो मुझे आता ही था, और Yes. मैंने अंदर क्या किया। पर वहाँ पे मैंने ये गलती करी कि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने पूरे इंटरव्यू में उस क्वेश्चन को ही अपने दिमाग में रखा कि मैंने क्या गलत, मतलब क्या नहीं बोला उस क्वेश्चन में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी पैनल ने जो भी जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे, जो आई कुड हैव आंसर्ड इन अ बेटर वे, आई कुडंट, बिकॉज मेरे दिमाग में वो ही घूम रहा था यस पूरे इंटरव्यू के टाइम में कि लाइक मैंने गलत कर दी, शुरू में ही मैंने गलत कर दिया, तो क्या होगा। आई डू थिंक उसकी वजह से मेरा वो इंटरव्यू वॉज नॉट दैट गुड, और आई विल से एवरेज काइंड ऑफ। ओके And when the final results came, I was not in the final list. I do think because of the interview, because I got 7.8. I messed it up by 3 or 3.5 around something marks. The Okay. final you are cut off. So यस एंड द लास्ट सेबी ने जिस तरह से update- yes sir. तो PFRDA का जो रिज़ल्ट आया था 3rd of December को आया था, और सेबी का नोटिफिकेशन तब तक आ चुका था या आने वाला था, वैसा ही कुछ था, अभी न्यू की आने वाला है या आ चुका है, आई डोंट रिमेंबर। आ चुका था बिकॉज 15 या 16 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। तो फर्स्टली तो आई वॉज होपिंग कि PFRDA में ही हो जाए, बिकॉज यहाँ तक पहुँचे हैं और आई वॉज स्कोरिंग गुड इन पेपर 2। आई नो वो अगली बार होगा कि नहीं होगा नहीं पता, यस बिकॉज इट्स वेरी अनप्रेडिक्टिव कि आप, क्योंकि आई डू थिंक कि जिनका होता है जिनका नहीं होता है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स मैटर ऑफ 1-2 क्वेश्चंस कि आपने जो मारा एग्ज़ाम में, लाइक आप जो करके आ रहे हो वो सही हुआ नहीं हुआ, थोड़ा तो होता है। एंड जब रिजल्ट आ रहा था, आई वॉज जस्ट लाइक रिफ्रेशिंग माई व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हमारे सारे एस्पिरेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ था कि आज रिजल्ट आने वाला है, ये होने वाला है। फिर सडनली रात के आए गए 7-7:30 बजे के टाइम किसी ने उसमें लिखा कि मुझे मेल आ गया PFRDA का। ऐसे मेल आ गया, तो ऐसा कभी कभी वो करते हैं कि PDF की जगह वो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मेल करते हैं पहले। तो नाउ आई वॉज रिफ्रेशिंग माई मेल कि मे बी आ जाए आ जाए आ जाए। तो इट वेंट फॉर अराउंड 15 to 20 minutes, दैट एनजाइटी, दैट वेट फॉर द मेल, बट वो नहीं आया। एंड 5 मिनट उसके बाद उन्होंने PDF अपलोड कर दी, तो समझ में तो आ गया कि नहीं हुआ। अब ये जानना था कि क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे
मिस हुआ, वो तो मार्क्स वो मतलब तुरंत तो नहीं देते। 3rd ऑफ दिसंबर को रिज़ल्ट आए थे, तो उस दिन रोया 2 दिन। आई वॉज लाइक ठीक है, सहते हैं, देखते हैं क्या होता है ऐसे करके। देन आई वाज लाइक नहीं भाई, इतना तक अगर हम आए हैं तो यहाँ से वापस तो नहीं जाना। फर्स्टली मेरे दिमाग में चल रहा था कि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल जॉइन माई प्राइवेट जॉब, बिकॉज यूपीएससी का 2 बार देख के मुझे समझ में आ गया था कि ठीक है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए। फर्स्टली एनालाइज कर, इट्स नॉट लाइक कि अब मैंने चुन लिया है तो आई विल बी डूइंग इट कंटिन्यूसली, कि नहीं अब जब तक एज है तब तक मैं करता रहूँ या ये इस तरह का। ये फर्स्टली हमें एनालाइज करना चाहिए। जैसे सेबी का मैंने एग्ज़ाम दिया था तो आई न्यू कि अगर ये मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है, और स्पेसिफिकली सीए करके ये तो हो ही गया था कि फेलियर्स की तो चलो ठीक है, अपनी गलतियों से सीखने की आदत तो हो ही चुकी थी। इट वाज नॉट लाइक कि ऐसा है, सीए में तो ट्रेनिंग मिल ही जाती है हमें इन चीज़ों की। तो सीबी में जब सीए में भी ऐसा ही था, जब वहाँ भी फेल होता था, इट वाज नॉट लाइक कि मैंने पूरी मेहनत करी और नहीं हुआ। आई न्यू कि यहाँ पे मैंने चूक करी थी जिसकी वजह से मेरा रह गया है। एंड सेम हैपेंड विद सेबी ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसे दिया था बिना प्रिपरेशंस के। तो दिस टाइम जैसे एनपीएस में मैंने दिया एंड पीएफआरडीए, दीज वेयर द 2 अटेम्प्ट्स वेयर आई लाइक इंडल्ज माई सेल्फ होली कि हाँ भाई कैसे ला सकते हैं। तो एनपीएस वॉज तो काइंड ऑफ अ माइनर मिस्टेक, चलिए वो भी आई विल टेक ऑन माई सेल्फ। एंड पीएफआरडीए में आई वॉन्टेड टू नो कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है जो मैं सेबी में ना करूँ, बिकॉज मैंने सोचा था कि अगर पीएफआरडीए में होता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल जॉइन माई ऑफिस फ्रॉम 15th और 16th ऑफ दिसंबर एंड आई विल लीव, कि उसके साथ ही जो करना है उसके साथ करना है, अब छोड़ के नहीं कर सकते। बिकॉज व्हेन यू आर क्वालिफाइड एंड यू आर लाइक नॉट वर्किंग सिंस लास्ट 1 ईयर एंड 3-4 एग्जाम्स आपने दिए और जो आप माइनर मार्क्स से रह जा रहे हो, एंड इट्स नॉट लाइक माइनर मार्क्स, आइदर आप इधर हो और उधर हो। लाइक मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि देयर इज अ टेबल काइंड ऑफ, यू आर आइदर इन दिस साइड ऑफ द टेबल और दिस साइड ऑफ द टेबल। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस साइड सबसे आगे आके बैठा हुआ हूँ, और कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करते। इफ आई एम टेलिंग नाउ कि मेरा इस मार्क्स से रह गया, इस मार्क्स से रह गया, और लोग अगर सुन रहे हैं तो इट्स जस्ट बिकॉज कि अभी मेरा कहीं हो चुका है। अगर मेरा नहीं होता और मैं कहता यहाँ भी मेरा नहीं रह गया 0.5 से, यहाँ 2 से रह गया, यहाँ 3 से रह गया, तो इट विल साउंड लाइक अरे इसका तो रह ही जाता है काइंड ऑफ। तो इट्स डिफरेंट सिनारियो, इट्स जस्ट वही टेबल वाला सीन कि या तो आप इधर हो या तो आप उधर हो। तो इस टाइम मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था सेबी के साथ। तो आई वॉज वेटिंग, प्रिपेयर कर रहा था सेबी के लिए। आई वॉज वेटिंग कि उसके मार्क्स आ जाएं तो मुझे पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत एनालाइज कर लिया। बिकॉज व्हेन आई सेड इन द ग्रुप कि मुझे 79-80 आ रहे हैं ग्रुप में, तो एवरीवन थिंकिंग लाइक कि एनालाइज जॉब करते हो ना, कि ओवर करके करते हो, यू मार्क योर डाउटफुल क्वेश्चंस आल्सो करेक्ट। पर वो मैं कभी नहीं करता। इफ द क्वेश्चन इज डाउटफुल आई कंसिडर इट एज रॉन्ग और आई जस्ट कीप्ट इट असाइड कि उसके बिना मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं काइंड ऑफ। तो जब 30th ऑफ दिसंबर को आई गेस मार्क्स रिलीज हुए थे पीएफआरडीए के, तो आई सॉ कि वेयर इन पेपर 2 आई वाज सेइंग कि मुझे मिनिमम 80 आएंगे। आई गॉट 82.5 देयर। तो दैट वाज एज पर माई एक्सपेक्टेशंस जो मुझे लगा था। इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, लाइक एवरेज गया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है 8-9 में भी आ जाएं, हो सकता है। वहाँ पे मुझे 7.8 थे, पर स्टिल आई वाज नॉट सरप्राइज कि चलो ठीक है मैंने गलती करी वहाँ पे। आई गॉट नर्वस, मेड अ मिस्टेक, आई विल नॉट डू इट, आई विल वर्क ऑन इट काइंड ऑफ। फिर जो इंग्लिश का पेपर था देयर मुझे 50 मार्क्स थे, 50, एंड आई गेस एवरेज मार्क्स जो थे लोगों के दैट वाज अराउंड 56-57 काइंड ऑफ ऐसा करके। सो वो एट फाइनल रिजल्ट में अराउंड 2 मार्क्स का तो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे 50 क्यों मिले, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरी इंग्लिश इतनी ऐसा है। बिकॉज ना तो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़े थे, आई ऑलवेज कंप्लीट माई क्वेश्चन बिफोर टाइम, और मैं एक बार लाइक प्रूफ रीडिंग भी करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम में, बिकॉज मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। आई ट्राई कि मैं एक तो वर्ड लिमिट्स में ख़त्म करूँ। एंड जैसे नरवीर सर बताते हैं कि अब क्योंकि हर क्वेश्चन जो हैं 5 रहते हैं, 8 मार्क्स के रहते हैं, तो ट्राई कि आप 80 वर्ड्स लिखो उसमें। तो मैंने अराउंड उतना लिखा था हर एक क्वेश्चन में, किसी में 90-100 भी लिखे थे और किसी में 60-70 में भी रह गया हो कि उस क्वेश्चन का उससे ज़्यादा का वर्ड्स नहीं हो सकते, तो कैसे अब कहीं से लाके तो नहीं कर सकते। तो वैसा ही था, पर आई फील्ड इट, मतलब कुछ छोड़ा नहीं था मैंने, और प्रूफ रीडिंग भी की थी। अभी तो याद नहीं है कि लाइक टॉपिक्स क्या थे उसके पीएफआरडीए के, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 50, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 55 to 60 के बीच में। सो 2 मार्क्स वहाँ से, क्योंकि मेरा फाइनल में 3 मार्क्स के आसपास से नहीं हुआ था, तो 2 मार्क्स तो मुझे वहाँ से ही कम गए। और इंटरव्यू का था 7.8, तो वहाँ पे आई गेस अगर आपको 9.5 या 10 होते तो आई वुड हैव मेड टू द फाइनलिस्ट यूआर वाला। yes. तो
अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फर्स्टली तो मुझे एनालाइज करना था, तो आई वाज लाइक चलो पेपर 2 तो मैं कर रहा हूँ, ये सही तो जा रहा है, तो इंग्लिश का क्या करूँ। पर अब ये इशू था इंग्लिश के साथ कि मुझे लगा कि इंग्लिश इज स्टिल लाइक अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिपेयर करके जाओ, उसकी पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, ये करके जाओ, वो करके जाओ, और हो सकता है आपको फिर मार्क्स ना मिले वहाँ पे। यस तो इट्स नॉट ऐसा कि आप उसकी रोज़ प्रिपरेशन करते रहो तो आपको ज़्यादा मार्क्स आना कन्फर्म है, काइंड ऑफ। एंड बी कमिंग फ्रॉम अ लाइक रिस्क एडवाइजरी डोमेन, तो आई प्रेफर कि ये रिस्क को जितना कम कर सकता हूँ मैं वो Yes. करने की कोशिश करूँ। तो मैंने क्या किया कि आई थॉट कि दिस टाइम इंग्लिश को तो जो है ठीक है, इसको लास्ट में देख लेंगे, लास्ट एक वीक में क्या करना है। ये जो पेपर 2 का जो पेपर है, इसको मुझे 80 से 90 तक लाना है, कैसे भी करके, जितने भी हैं। तो मैंने जो ऑफिस ज्वाइन करने का प्लान था उसको तो कैंसिल किया पहले, कि इतने 1 साल दिया है, ठीक है 2-3 महीने और सही, बिकॉज सेबी का फेज़ 1 ऑन 10th ऑफ जैन, फेज़ 2 वॉज 21st ऑफ फेब, तो उसके रिजल्ट तक तो वेट करना ही है, मार्च तक। तो लाइक चलो इतने दिन दिए हैं, 3 महीने और सही दे के देखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं क्या होता है। मेरे पास कॉन्सेप्ट नोट्स थे जो बना थे। बाकी जितने मैराथन्स आज तक एडुटैप ने कराए हैं, देयर इज़ अ प्लेलिस्ट इन एडुटैप्स चैनल ऑन यूट्यूब जिसमें 273 प्लस वीडियोज़ हैं। ओके एंड मैं था और मेरा एक फ्रेंड भी था हु वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैं बोला भाई इसको पूरा ख़त्म करना है देख के, जैसे भी हो इस बार 90 तो लाना है पेपर 2 में, क्योंकि इंग्लिश देखते हैं वो तो लास्ट का देखा जाएगा क्या करना है। तो पेपर 2 के लिए मैंने वहाँ से देखना शुरू किया, कंप्लीट पहले पुरानी वीडियो से देखना शुरू किया, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो स्टैटिक हैं, आई डोंट थिंक कि उनमें चेंज होता है। इकोनॉमिक्स है जैसे उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो चेंज हो जाएंगे आगे जाके। जो पुराने वीडियोज़ हैं वो आज के लिए भी यूज़फुल हैं। तो मैंने वहाँ से देखना शुरू किया, करते 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 सारे वीडियोज़ मैंने देख डाले। फिर मैंने लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स के भी देखे, मैराथन्स तो मैंने सबके देखे वहाँ पे जो अवेलेबल हैं। बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि एडुटैप का जो MCQ का जो मॉडल है, जो मुझे लगता है इट्स लाइक जब आप क्वेश्चन देते हो उसके बाद जो ऑप्शंस मेंशन है, इट्स नॉट लाइक कि जैसे मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स का देखा है, एक क्वेश्चन है उसका आंसर आया, बताया सही, फिर नहीं मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन है उसके बाद आप एक तो करेक्ट आंसर बताते हो, और मोस्ट ऑफ द लाइक जैसे कृतिका मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं या फिर जैसे जलद सर मैनेजमेंट पढ़ाते थे, तो उनका था कि जब भी आप एक ऑप्शन बता रहे हो उसके बाद जितने रॉन्ग ऑप्शन है ना उसकी भी एक्सप्लेनेशन देते थे। तो आई डोंट थिंक कि एक एक MCQ से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता था। और बीच में आपकी बुक भी आई थी वो 1900 प्लस MCQs वाली जो अंशित सर ने दी थी, तो वो भी मैंने मंगाई थी अमेजोन से। आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। इट्स लाइक सेइंग कि 1900 MCQs, इट्स काइंड ऑफ मोर देन 10,000 MCQs, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसके अंदर ही 5-5 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जैसे अब थ्योरी है मैनेजमेंट की, उसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो 5 एक्सप्लेन कर रखे हैं। HRD है, कुछ भी है, जैसे इकोनॉमिक्स ही है, जैसे उसमें ISLM मॉडल का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अब उसको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैम ने। तो इट वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैंने वो किए, सारे मैराथन्स देखे, मेरे पास कॉन्सेप्ट नोट्स पहले से थे जो बना रखे थे मैंने। तो मैंने पूरी मेहनत पहले तो पेपर 2 पे करी, फिर जब एग्ज़ाम वॉज मतलब पेपर 1 के लिए तो आई डिडंट फिर बैठ के लाइक पेपर 2 मतलब फेज़ 2 के लिए आई डिडंट मतलब फेज़ 1 के लिए आई डिडंट प्रिपेयर्ड, फेज़ 2 से ही हो जाना था ये, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है नहीं पेपर 1 में। माई इंग्लिश इज़ क्वाइट आई थिंक क्वाइट गुड कि वो मुझे हेल्प कर देती है कि मैं पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर लूँ। और फेज़ 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फेज़ 1 तो हो ही जाना है, सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट। तो मुझे 21st ऑफ फेब के पहले आई वॉज टारगेटिंग, एक मेरी लाइक छोटी सी कॉपी है उसमें मैं बना के रखता हूँ प्लान सब्जेक्ट वाइज कि यहाँ से यहाँ तक इसके सारे ये ख़त्म करने, ये ख़त्म करने, एंड स्टार्ट मार्किंग इट। 1 टिक की एक बार हो गया, 2 टिक की हो गया, जब 5 बार करता हूँ तो स्टार मार्क करता हूँ कि ये पेपर तो पूरा हो चुका है मेरा, काइंड ऑफ। तो 15th फेब तक मेरा टारगेट था कि जितने वीडियोज़ हैं, ये जो पूरी बुक है, इसको एक बार मैं पूरा ख़त्म कर दूँ। उसके बाद मैं लास्ट 5 दिन जो है 2 या 3 घंटे इंग्लिश को दूंगा देखने के लिए कि कॉमन टॉपिक्स क्या आते हैं। मैंने उस टाइम भी सोचा कि मैं ज़्यादा मेहनत उसको तो दूंगा नहीं, आई वोंट लाइक इतना ज़्यादा नहीं दूंगा, बिकॉज आई डू थिंक कि आई एम नॉट दैट बैड कि उसके लिए मुझे पूरा प्रिपेयर करना पड़े। नरवीर सर की एक इंग्लिश की एनालिसिस वीडियो आती है, मतलब वो बताते हैं कि कॉमन PDF भी देते हैं वो कि कुछ टॉपिक स्पेसिफिक क्या हैं, आप ये देख लो। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस सीक्वेंस में लिखना चाहिए। तो उसमें ही था कि आप पहले इंट्रो दो, फिर बॉडी लिखो, फिर लास्ट में कंक्लूजन काइंड ऑफ, फिर जैसे प्रेसी है तो उसको आपको कितना क्या क्या चीज़ है जिसको स्पेसिफिक मेंशन करो, रीडिंग के वक्त नोट करते जाओ, वो वाली चीज़। तो वो वीडियोस मैंने देख ली थी।
और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक उसमें तो मेरे मार्क्स नहीं कटते होंगे, मेरे जो भी आई गेस मार्क्स जाते होंगे वो एसए में जाते होंगे और मे बी प्रेसी में जाते होंगे, Okay. ये तो नहीं पता चलता, बट आई थिंक कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है मेरा। तो आई जस्ट नोटेड कि उन्होंने बताया कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 5, तो 80 अराउंड वर्ड्स में आप आंसर दो उसके। तो क्योंकि टाइपिंग स्पीड और उसकी मुझे इशू थी नहीं, तो मैंने क्या टारगेट किया था कि एग्ज़ाम में 15 मिनट में ऐसे, 15 मिनट में प्रेसी और 20 मिनट से 25 मिनट में मैं उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ख़त्म करूँगा, लाइक 5 मिनट्स ईच फॉर वन क्वेश्चन, और लास्ट 5 मिनट्स आई विल गिव कि मैं प्रूफ रीडिंग कर पाऊँ उसको। और इस बार मैंने क्या किया एग्ज़ाम में, PFRDA के इंग्लिश में मैंने नोटिस किया था, आई थॉट, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था ना कि सेबी के फाइनल मार्क्स जो हैं वो कम है, आई थॉट मुझे 47 आए हैं, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है इसके वजह से मुझे कम मार्क्स आए, अदरवाइज 47 इन दैट अटेम्प्ट ऑफ सेबी वाज क्वाइट गुड, क्योंकि जिनके सिलेक्शंस हुए थे उनको 43 42 आए हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो इस बार PFRDA में मैंने क्या किया था, फेज इंग्लिश के पेपर में आई स्टार्टेड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, यूजिंग कंजक्शंस, यूजिंग सम वर्ड्स विच आई थिंक कि अच्छा इससे इंप्रेशन अच्छा जाएगा, लाइक कंटेंट अच्छा लगेगा। Yes. बट व्हेन द रिजल्ट्स केम इट वाज ओनली 50, तो आई वाज लाइक इससे बेटर है आई विल गो फॉर सिंपल लैंग्वेज, सिंपल कंटेंट, बट आई विल मेक श्योर कि जो मेरा ग्रामर है और जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं कुछ भी ये उसमें ना हो, सिंपल सा लैंग्वेज हो। आई गेस एक टॉपिक आया था एस्से का रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, सो क्वाइट कॉमन टॉपिक, और मैंने कॉमन पॉइंट्स ही लिखे थे उसमें ऐसा नहीं कि कुछ मैंने बाहर से कुछ अलग सा कंटेंट लाया, आई जस्ट टारगेटेड कि वर्ड लिमिट के अंदर हो, सिंपल इंग्लिश में लैंग्वेज हो, एक कंटेंट समझ में आ रहा हो और मेरा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। दैट्स व्हाट आई डिड दिस टाइम फॉर इंग्लिश। और फेज पेपर 2 के लिए तो आई वाज लाइक क्वाइट प्रिपेयर्ड दिस टाइम। तो जब एग्ज़ाम हुआ तो स्टिल द पेपर 2 विच केम दिस टाइम वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। जो लास्ट टाइम वाला से भी था वो तो उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट आई डू थिंक उसके पहले भी जो पेपर्स हुए थे ये वाला पेपर उनके भी लेवल से काफ़ी ऊपर था। Yes. और या फिर जैसे मैंने PFRDA भी दिया है, NPS भी दिया है, फर्स्टली वहाँ तो 50-50 क्वेश्चंस होते थे 2 मार्क्स के, यहाँ पे सेबी ने लास्ट टाइम से 100 क्वेश्चंस लाए हैं, और ये जो 100 क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम दे वर लाइक वन लाइनर्स, दिस टाइम ऑप्शंस वेर इन लाइक 1-2 लाइनर्स काइंड ऑफ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। तो फर्स्टली तो मैंने जब देखा तो फिर वो वाला सीन हुआ कि थोड़ा नर्वस होना जब आप क्वेश्चन देखते हो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फर्स्टली आई काउंट माई सेल्फ कि नहीं देखते हैं पढ़ते हैं, देन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस लाइक एक पेज के हैं, बट उनका आंसर इज़ लाइक इफ़ यू रीड द ऑप्शंस ना काइंड ऑफ तो आपको मिल जाएंगे। लाइक आई रिमेंबर कोई एक ऐसा बैंक का क्वेश्चन था कि कौन सा एक्ट है, और उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा था NBFC एक्ट, जो कि कोई एक्ट ही नहीं है। लाइक जो वर्डिंग्स थी क्वेश्चन की वो काफ़ी बड़ी थी, अगर आप उसको पढ़ने जाओ यू विल लाइक आता ही नहीं है काइंड ऑफ, बट जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा काइंड ऑफ, ऐसा था। तो दिया, पर स्टिल पेपर वॉज टफ। तो एक तो ये है कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे लिए ही टफ है काइंड ऑफ कि मेरे से नहीं बन रहा तो वो अलग बात होती, पर पेपर वॉज टफ। तो मैं निकला, जैसे ही बाहर निकला मैंने अपने उस फ्रेंड को फ़ोन लगाया जिनके साथ हम प्रिपेयर करते, भाई 90 आ रहे, तो ही वाज लाइक भाई ये पेपर था ही नहीं 90 वाला। आई वाज लाइक ओके देखते हैं, फिर बात करके आई वेंट टू होम। ग्रुप था हमारा एस्पिरेंट्स का, उसमें बातें हो रही थी कि भाई कैसा पेपर आया है, ये है, कर नहीं पाया, नहीं कर पाया। तो आई वाज लाइक ओके देखते हैं, आई विल मैच। मेरी आदत है शुरू से ही जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो एग्ज़ाम जाते ही मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, नॉट लाइक ये लाइक स्कूल टाइम से ही मैं कोई पेपर दिखा रहा हूँ कि मैंने ये लिखा है, इसमें हो सकता है 2 मार्क्स काट लें, इतने दे दें करके, तो मेरी शुरू से आदत है। तो आई वेंट। अब जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एग्ज़ाम एनालिसिस आता है तो उसमें क्वेश्चंस वो लाते हैं, मतलब स्टूडेंट से पूछ के कि कौन से क्वेश्चंस थे, आपने क्या मार्क किया, ऐसा करके। तो उन सबको मिला के मैंने क्वेश्चंस एक्यूमुलेट करने शुरू किए एंड देन स्टार्टेड रिमेंबरिंग कि मैंने क्या मार्क किया है। फिर जो हमारा ग्रुप है दैट वाज आल्सो हेल्पफुल उनको करके। सो फाइनली जब कैलकुलेट किया मैंने तो आई अटेम्प्टेड 95 क्वेश्चंस वहाँ पे इन द एग्ज़ाम। ओके। एंड 5 मैंने छोड़ दिए थे बिकॉज, और लोग कह रहे थे कि दिस पेपर वाज मेड फॉर CAs बिकॉज उसमें कुछ टैक्सेशन के क्वेश्चन थे, और जो मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें 3 क्वेश्चन टैक्स के ही थे बिकॉज कोई नहीं याद रखता। इन्होंने जो पूछा था लाइक सेक्शंस पूछे थे एंड दैट वेयर आल्सो लाइक नॉट द कॉमन सेक्शंस विच आर यूज्ड जनरली। कोई पैन से पूछ ले रहे हैं, कोई असेसमेंट से पूछ ले रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो लाइक काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थे, लाइक जैसे 50 पैसे वाला कि कितने तक कर सकते हैं। तो थोड़ा तो अलग था इस बार का पेपर,
बट स्टिल जब मैंने मैच किया अपने पेपर्स को एक PDF बना के, तो अराउंड 6 क्वेश्चन थे जिनके मुझे अभी भी नहीं पता इट्स राइट से कि क्या आंसर है। कोई इंस्टीट्यूट कुछ और बता रहा था, जैसे एडवर्ट ऐप से मैच कर रहे हैं तो ये है, किसी और से कुछ है, तो वाज लाइक, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग को भी जो क्वेश्चंस मिलते हैं एस्पिरेंट्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो पूरा नहीं बता पाते ना, कहाँ से वो मेमोरी yes. बेस्ड रहता है। Yes. तो इट्स थोड़ा, तो उसको मैंने साइड रखा। 89 क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिले, जिसमें से मेरे 80 क्वेश्चन सही हो रहे थे और 9 रॉन्ग हो रहे थे। तो इट वाज कमिंग टू अराउंड 77.75। और जैसा पेपर था, जैसे सबने बोला कि अगर आपको 70-71 भी आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट द इंटरव्यू कॉल। तो 77.75 पेपर 2 में थे। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इस बार ऐसा ना हो कि इंग्लिश में मुझे सेक्शनल कट ऑफ में ही, मतलब वो कट ऑफ ही क्लियर ना हो कि मुझे कॉल ना आए। तो आई वॉज कीपिंग काम कि जब तक रिजल्ट नहीं आता आई वोंट बी लाइक हाइप्ड अप, चलो देखते हैं क्या होता है इंग्लिश का। फिर जब रिजल्ट आया तो आई वॉज इन फॉर द इंटरव्यू। तो आई वॉज लाइक ओके चलो, आई न्यू कि अगर मैं इन हूँ तो इंग्लिश का कट ऑफ तो क्लियर है, और आई न्यू कि जो पेपर 2 है उसमें आई मस्ट बी हैविंग सम एज, क्योंकि जैसे ग्रुप में बातें होती हैं हमारी तो एक्सपेक्टेड मार्क्स लोग बताते हैं अपने कि कितने आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो हो सकता है मे बी कि मेरा 2-3 मार्क्स का एज हो यहाँ पे, और आई वॉन्टेड कि ऐसा इस बार ना हो जो लास्ट टाइम PFRDA में हुआ था। Yes. बिकॉज यहाँ तक पहुँच के वापस जाना इज़ लाइक फिर से 9 महीने का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। Yes. Yes. नोटिफिकेशन, फिर 2 महीने बाद फेज़ 1, फिर फेज़ 2, फिर इंटरव्यू और करके। और लास्ट ईयर जो था मेरा वो बहुत बार ऐसा हो चुका था, तो आई डिडंट वांट कि इस बार ऐसा हो, सो आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर इट। तो मैंने अभी एडवर्ट ऐप का कोर्स भी आया था इंटरव्यू गाइडेंस वाला, तो मैंने फिर ऑनलाइन ही बुक किया था बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन बिहार। तो उस टाइम दिल्ली आना इंटरव्यू के लिए वाज नॉट लाइक फीजिबल। Yes. तो मैंने वो कोर्स भी लिया था, एंड पहले भी PFRDA के लिए मैंने दे रखा था, और इस बार तो एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी था PFRDA देने के बाद। सो आई वॉज लाइक बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम फ्रॉम द लास्ट इंटरव्यू विच आई गेव फॉर PFRDA, and this time I used ChatGPT a lot. Like I told him ki work as a panel of 4 people and take a mock interview for me, a CV kind of. So full day I was like on it, ask this question. I completely told like my profile ये and उसको सब याद रहता है kind of ऐसा। तो पूरे दिन kind of mock interviews मैं उस पर भी देता था करके कि मुझे इस बार रिस्क नहीं लेना, कि क्लियर करना है जैसे भी हो। और लकीली इस टाइम मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे तो नहीं था लाइक ऑलवेज। Okay. लाइक जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन आई वॉज द फर्स्ट गाय, बट नॉट द फर्स्ट गाय टू बी इंटरव्यूड। Mm-hmm. तो मेरा इंटरव्यू था कोलकाता में 4th जून को। तो आई वेंट देयर एंड आई वॉज द फर्स्ट गाय। सो दिस टाइम ऑल्सो एक गलती तो हुई थी जो लास्ट टाइम हुई थी, सिमिलर लाइक आई कुडेंट आंसर अ बेसिक क्वेश्चन। आई डू थिंक इट्स क्वाइट कॉमन फॉर एवरी वन। जब हम अंदर उस सिचुएशन में होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि बाहर वाला सिचुएशन कि हम अपने फ्रेंड्स में बातें कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हुआ, या फिर Yes. इवन द फैकल्टीज से हम बातें कर रहे हैं जिनको हम जानते हैं, तो वो अलग एक सिचुएशन होता Yes. है। Scenario अलग। और जब हम अंदर रहते हैं और आई नो कि 4 लोग हैं जो हमें जज कर रहे हैं, हमारी हर एक आंसर को जज कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं कि क्या है कैसा है, सो थोड़ा तो नर्वसनेस हो जाती है। सो फर्स्टली आई थिंक उन्होंने शुरू किया इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या क्या मैंने काम किया है, डिग्रीज़ वगैरह। एंड रिसेंटली 1 मंथ पहले मैंने पावर ग्रिड भी ज्वाइन किया था, Okay. तो एज एन ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस। लाइक Oh. आई थिंक उसका जो सिलेबस था वो सेबी से काफ़ी मिलता जुलता था, तो मुझे उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो यहाँ से पढ़ रखा था उसके बेसिस पे ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, एंड सिमिलर वहाँ पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गया था। Oh, तो आई great. न्यू कि इसको एक एज तो इंटरव्यू में भी मिलेगा सेबी में। आई डू थिंक कि मिलना चाहिए था, पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है। तो आई वॉज मार्च में मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था, मार्च में नहीं मई में ज्वाइन किया था। इंटरव्यू होना बाकी था मेरा बिकॉज जून में था। तो फिर वहाँ से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया कि नहीं इस बार तो नहीं छोड़ना। तो उन्होंने लाइक इंट्रोडक्शन के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा। मैंने उसमें मेंशन नहीं कर रखा था बिकॉज PIF के बाद रिजल्ट्स आए थे मेरे। उन्होंने उसके बारे में पूछा और उसके बाद एक भी HR क्वेश्चंस नहीं पूछे। ऑल द क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए वे टेक्निकल ओनली, Okay. ऐसे करके। और मैंने एक अच्छी चीज़ करी थी विच फेज़ 2 का एग्ज़ाम होने के बाद आई डिड 3 सर्टिफिकेशंस ऑफ NISM। मैंने 5 टारगेट सोचा था कि 5 करके जाऊंगा इंटरव्यू से पहले, पर फिर मैंने सोचा कि यार इतने ऑप्शंस नहीं देने उन्हें, अगर 5 वो दे दो फिर CA CMA UPSC कुछ भी पूछ सकते हैं वो, और जितना Right. ज़्यादा हम एक्सपोजर देंगे खुद पे रिस्क है करने का। इससे अच्छा है कि आप कम करो
और उसको कवर करके जाओ कि जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप रिप्लाई कर पाओ। तो मैं 3 करके गया था, लाइक सिक्योरिटीज़, इक्विटी एंड रिसर्च एनालिस्ट का। तो सर ने सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से शुरू किया कि आपने कब किए, सब 1 अटेम्प्ट में निकल गया था ऐसा करके। फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिसर्च एनालिस्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र करके, एंड आई डू एक्सप्लेन डेट। आई डोंट थिंक कि क्लियरली मैं बोला, पर उन्हें पता चल गया कि नॉलेज है, एटलीस्ट कुछ पता है उसके बारे में, पढ़ रखा है, इट्स नॉट लाइक रैंडम कुछ भी मेंशन कर रखा है। तो इंटरव्यू वाज क्वाइट गुड, इट वाज गोइंग गुड, एवरेज, देयर द पैनल वाज वेरी कॉर्डियल काइंड ऑफ। फिर एक सर ने मुझसे टैक्सेशन का कुछ पूछ लिया था, एंड दैट इज़ लाइक क्वाइट वीक पार्ट ऑफ माइंड। ओके, क्वेश्चन वाज बेसिक, बट इन दैट सिचुएशन, उस माहौल में जब मैंने टैक्स सुना तो एक तो पहले से थोड़ा दिमाग हो गया कि यार इतने सारे ऑप्शन से टैक्स क्यों पूछ रहे हैं सर, काइंड ऑफ। तो पर वो था, इट वाज क्वाइट अ बेसिक क्वेश्चन और आई कुडंट रिप्लाई इट। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार फिर ये लास्ट वाला सीन ना हो। तो पर उस टाइम मैंने उसको कंट्रोल किया। दिस टाइम मैंने उस क्वेश्चन को सुना, आई क्लियरली सेड कि सर सॉरी बट टैक्सेशन इज़ अ वीक पार्ट ऑफ माइंड, सो आई नो आई शुड नो इट, बट आई विल बी रीडिंग इट आफ्टर द इंटरव्यू, आई विल बी लाइक लुकिंग आफ्टर इट। तो उसके बाद आई मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट क्वेश्चन, नॉट लाइक लास्ट टाइम व्हाट आई डिड कि उस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा के बाकी क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी मैं गलत कर दूँ। तो उसको मैंने क्लियरली बोला, एंड दे मूव्ड ऑन फ्रॉम इट टू लाइक अदर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट, ECL और ये सब, वो भी वहाँ पे स्टॉप नहीं हुए। सो इट वाज लाइक, आई डू थिंक इंटरव्यू वाज नॉट कि आपको कितना पता है। अगर उनको नॉलेज देखनी होती वो एग्जाम में उनको पता है, मार्क्स वो आप देख चुके होते हैं। दे वांट टू सी द पर्सनैलिटी आपकी। आई डू थिंक क्योंकि मेरा अगर सिलेक्शन हुआ, आई एम वेटिंग फॉर द मार्क्स कि कितने मार्क्स मिले वो तो भी नहीं पता, बट आई डू थिंक कि दैट्स ऑल व्हाट दे वांट टू सी इन द इंटरव्यू। बिकॉज इफ़ दे वांटेड, अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर दे भी देता तो इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इतना तो कुछ खास इम्पैक्ट उससे आने नहीं था। सो दे जस्ट वांटेड टू सी योर पर्सनालिटी कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हो। एंड मेरा इंटरव्यू वाज, इट वाज नॉट लाइक कि एक सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वही पूछ रहे हैं काइंड ऑफ। अगर वो पूछ रहे हैं तो सडनली बीच से कोई और पैनल वाले भी कुछ थोड़ा सा पूछ ले रहे हैं, इन्वॉल्व हो जा रहे हैं करके, या प्रेशर देने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कि क्या ये बदल जाता है काइंड ऑफ। लाइक से वो टैक्स वाले क्वेश्चन के बाद ही जो पैनल में मैम थी, शी वॉज आस्किंग अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ टैक्स कि FD का इंटरेस्ट क्या हर साल टैक्सेबल होता है, एंड विथ एन एक्सप्रेशन कि आप मे बी बदल जाओ, आप आंसर चेंज कर लो अपना काइंड ऑफ। पर इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी नाइस दिस टाइम। लास्ट टाइम से काफ़ी सही था, पर स्टिल एक वो थोड़ा डर तो रहता है ना कि मे बी पूरे इंटरव्यू की जगह, क्योंकि पैनल लेट्स अगर उसी क्वेश्चन को उन्होंने नज़र में रख लिया कि अच्छा इसको तो ये नहीं आता काइंड ऑफ। पर आई गेस इन सम सेलेक्टेड, तो आई थिंक उन्होंने पर्सनैलिटी देखी काइंड ऑफ, जो वो देखते हैं, देखना चाहते हैं कि एज अ CB ग्रेड ऑफिसर जो उन्हें रिक्वायरमेंट लगी मे बी। तो दैट वाज द स्टोरी सर, एंड डू थैंक एडुटैप सर टू बीइंग अ पार्ट of my the journey, because NPS से लेके सेबी तक I have like completely relied on the marathons clearly. क्लासेस तो मैंने एक बार NPS के लिए ली थी, पर हर एक एग्ज़ाम के पहले मैराथन्स तो मैंने सारे कवर किए हैं, एंड द वे लाइक द फैकल्टीज एक्सप्लेन द ऑप्शंस, द कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग, इट वाज वेरी हेल्पफुल। ग्रेट टू नो दैट। काफ़ी जो है आपने पूरी जर्नी बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर, तो इट इज़ वंडरफुल। आई कुड सी दैट एट ईच पॉइंट आप अपने जो पॉजिटिव्स हैं उनको और भी ज़्यादा जो है उन पे वर्क करके, एंड यू सॉ व्हाट कैन बी डन एंड वर्कड ऑन दैट पार्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार इसमें थोड़ा सा मैं रह गया इस तरीके से। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो एटीट्यूड है ये डेवलप करना कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एस्पिरेंट्स ऑल्सो गिव अप आफ्टर, लाइक नेचुरल है, लगता है कि यार अब बस ठीक है ऐसा। तो वाज दिस फ्रॉम इनिशियल डेज, आप जैसे पहले से ही ऐसे थे, या फिर यू डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फॉर CA एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन? सर पहले से तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रहता है। ये एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं ना, आई डोंट थिंक जो लास्ट ईयर जैसे मेरे बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, तो अब मैं क्या हूँ, अब मैं उनके बारे में ये सोच सकता हूँ कि अगर हो गया रहता तो मेरा 1 साल पहले हो जाता, ये होता। बट नाउ आई थिंक अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ, आई नो द टेस्ट ऑफ फेलियर्स, और नाउ जब मैं क्वालिफाई किया हूँ तो आई कैन एन्जॉय इट मोर। अब मुझे इसकी वैल्यू पता चलती है। अगर हमें कोई चीज़ काफ़ी आसानी से मिल जाती है ना, तो वी डोंट लाइक वर्थ इट, हमें लगता है कि अरे ये तो चलो मिल गई। नाउ भी जब से मेरा इसका सिलेक्शन हुआ है तो आई वॉज फीलिंग कि अगर नहीं होगा
तो मैंने वो देख रखा है, जो PFRDA का जो फीलिंग थी वो मेरे अंदर थी पहले से। तो आई डिडेंट वांटेड कि वो फीलिंग फिर से आए, पर एटलीस्ट आई नो कि कैसा लगता है उसके बाद, एंड नाउ आई कैन एंजॉय दिस मोमेंट ऑल्सो। एंड आई वुड लाइक टू से द अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि इफ़ यू आर मिसिंग, आई सेड कि जैसे जो डिफरेंस है मेरे में और जो लाइक बहुत सारे लोग हैं जहाँ जो 1 मार्क्स से 0.5 मार्क्स से रह जाते हैं, काइंड ऑफ कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स काइंड ऑफ वन क्वेश्चन जो हमारा सही हो गया मे बी, या फिर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था जो हम बोल पाए और वो थोड़ा सा नर्वस होके रह गए। पर आई वुड लाइक टू से कि कोशिश करते रहो। इट्स लाइक इतने आगे हम आए हैं तो रुकने के लिए, हारने के लिए तो आए नहीं है। इट्स लाइक गिरना अलाउड है पर रुकना अलाउड नहीं है, काइंड ऑफ। तो मैं तो इसको ही फॉलो करता हूँ। और इट्स लाइक आई डू थिंक सपोर्ट आपके घर से या किसी को भी आप जिसको मानो, एक को रखो जिनसे आप बातें कर सको। कोई नहीं तो आप गॉड को भी कर सकते हो, अगर किसी पर्सन से नहीं तो आई डू थिंक कि पेशेंस एंड बिलीफ दोनों अगर आपके पास हैं तो इट विल ओनली रिजल्ट इन अ, व्हाट कैन आई से, इन अ गुड वे कहीं पे। इट्स नॉट लाइक कि अगर, और आई सोल थिंक अगर आपका ये नहीं होता कि आपको लाइफ में काम आएगा ही कभी ना कभी। अब जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं UPSC की ही प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सबको कहता था यार इसके एग्ज़ाम का क्या ही करूँ मैं, अगर नहीं निकला तो कहाँ यूज़ करूँगा मैं इस नॉलेज को, काइंड ऑफ करके। पर उसमें जो मैंने जीके पढ़ा था ना, उसकी वजह से आई कुड क्लियर द PFRDA का वो पावर ग्रिड का एग्जाम जिसमें जीके के क्वेश्चंस थे। मेरा रैंक 1 भी इसलिए आया बिकॉज आई कुड स्कोर हायर इन द जीके पार्ट देन द अदर CAs, क्योंकि उनका नहीं पढ़ा था। उसका क्वांट मैंने प्रिपेयर कर रखा था, वो भी मैंने विष्णु दत्त सर का ही देखा था। उनके वीडियोज़ हैं वहाँ पे, जस्ट लाइक वो 1-1.5 घंटे में पढ़ा देते हैं सारा CSAT कैसे आप कवर कर सकते हो। तो उसकी पढ़ाई से मेरा इधर रेगुलेटरी बॉडीज़ का फेज़ 1 का क्वांट तो कवर हो ही जाता है ना। तो कौन सी चीज़ आपको कहाँ काम आ जाए लाइफ में, और जनरली कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आपके अंदर जो वो ज़ील डेडिकेशन है, जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ में भी आपको जो मोटिवेशन देती है आगे लाइफ में भी, बिकॉज ये तो एक एग्ज़ाम है जस्ट, आगे लाइफ भी तो है, उसमें भी इश्यूज़ आने वाले हैं, ये भी होने वाले हैं। तो ये जो आपका बिहेवियर है ये आगे भी आपको काम आएगा। कैसे आप फेलियर्स, अगर मैं जैसे PFRDA में फेल हुआ नहीं, आई वोंट से फेल, आई वुड से अनसक्सेसफुल। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, आई वोंट से लाइक आई वॉज नॉट अ कंप्लीट फेलियर बट आई वॉज नॉट सक्सेसफुल इनफ कि मैं मूव ऑन कर पाऊँ काइंड ऑफ वहाँ से। तो वो फेज़, एक तो वो स्टेज काफ़ी स्टकिंग होता है कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स से रह जाते हो तो भी चल रहते हो थोड़ा कि अच्छा तो हो गया, लेकिन जब आप बिल्कुल मार्जिन पे आके रह जाते हो तो आपको ज़्यादा हिट करता है और आपके दिमाग में चलता रहता है कि यार अभी तो जैसे हो गया है, मे बी अगर ये नहीं होता तो मे बी वो दिमाग में स्टक रहता है लोगों के कि क्यों कैसे कैसे। बट आई वुड से कि जो होता है कुछ दिन सोचो, एनालाइज करो। फर्स्टली एक तो आई वुड से कि अपने वीकनेसेस को सबसे पहले एनालाइज करो कि कहाँ है, इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट डायरेक्टली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। देखो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ कहाँ है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं, उसको एनालाइज करो और उसके हिसाब से फिर प्रिपरेशन करो। बिकॉज अब इतने आगे तक आए हैं तो रुकने के लिए तो नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। Sure, since you have mentioned almost everything आपने mention कर दिया है, just talking about few more things, like अगर आप support की भी बात कर रहे थे तो like जो भी CA करता है, the dream is to go into as you said one of these companies and you already did that, right? सो उसके बाद क्या कुछ प्रेशर था फैमिली से या फिर देर आर दीज रिलेटिव्स ऑल्सो? तो ये चीज़ें थी आपके जर्नी में या फिर इट वाज ऑल स्मूथ एंड इट वाज कैरीड वेल बाय योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स? सर माय पेरेंट्स ऑलरेडी न्यू कि ये प्लान पहले से था कि मैं जब CA क्वालिफाई कर लूँगा तो UPSC के लिए प्रिपेयर करने जाऊँगा, एंड दे विल ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी लाइक, आई एम द फर्स्ट गाय जिसने मेरी लाइक, माई फैमिली इज़ अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिली, काइंड ऑफ 60-70 पीपल आर देयर, एंड आई वॉज द फर्स्ट गाय जिसने कॉमर्स लिया था। ओके, तो ऑन बिहार में लाइक इट्स हैपेंस ना, इंजीनियरिंग और ये इस लाइन को कोई नहीं प्रेफर करते लोग, ऐसा बन रखा है। जैसे SEBI ही है, रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशंस हैं। आई डोंट थिंक बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, ऐसा वैसा। तो आप जब किसी ऐसे रास्ते पे जाने की कोशिश करते हो जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो पेरेंट्स को थोड़ा ऐसा होता है ना, चिंता होती है, ये होती है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। एंड आफ्टर व्हेन यू क्वालिफाइड, यू हैव वेर वर्किंग ऑन अ सेटल्ड जॉब, तो उनका लाइक थोड़ा फिगर करना बनता है। पर जो मेरे पेरेंट्स थे, दे वर लाइक वेरी 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 मच सपोर्टिव। उनको पूरा ट्रस्ट था मेरे पे। दे वर लाइक जो करना है करो तुम्हें, वी जस्ट सपोर्ट यू, जो भी करना है। इट्स नॉट, कभी कोई प्रेशर नहीं आया। लाइक आई सेड पहले भी, लाइक 2 तरह के प्रेशर्स होते हैं एक इंसान पे। एक नेगेटिव प्रेशर होता है काइंड ऑफ आपकी लाइक फैमिली से, इफ you choose some path which is like different from the other people, expectations, yes. तो उनका प्रेशर रहता है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों छोड़ के बैठे हो, अच्छी खासी जॉब थी, क्यों। ये मेरे साथ तो कभी नहीं था।
एंड आई वोंट सजेस्ट कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा अपने बच्चों पे करें. Okay. एंड सेकेंड प्रेशर होता है, आई वुड से दैट इज़ नॉट प्रेशर, दैट इज़ काइंड ऑफ अ वे ऑफ मोटिवेशन. वैन योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू इन अ वे कि तुम जो कर रहे हो करो, वी आर विथ यू. नाउ इट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन यू, बट काइंड ऑफ अ पॉजिटिव प्रेशर विच लीड्स टू अ मोटिवेशन कि जब कोई आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है तो इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके उस ट्रस्ट पे खरे उतरो. सो दैट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई मोटिवेशन फॉर परसुइंग इट. और कि जब यहाँ तक पहुँच रहा हूँ तो क्या है, 2 क्वेश्चंस और सही करने हैं मुझे, 3 क्वेश्चंस और सही करने हैं. Absolutely. आई विल डू सम मोर हार्ड वर्क, तो और देख लेते हैं, कर लेते हैं. एंड उनके लिए तो आपको एक मोटिवेशन भी मिल जाता है ना. इफ़ यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ तो आपको खुशी मिलती है. पर जब आप किसी और के लिए, नॉट किसी और, लाइक आपको पता है कि आप किसी और, मतलब अपने पेरेंट्स ही हो गए, उनके लिए कुछ अगर उनको खुशी मिलने वाली है और तब आपको करना है, तो आई गेस इट गिव्स यू डबल मोटिवेशन. तो मेरे साथ प्रेशर का तो कोई सीन नहीं था. इट वॉज जस्ट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन आई विल से, जो मेरे पेरेंट्स की साइड से था. और रिलेटिव्स बाकी एक्चुअली शुरू में आई डिडंट लाइक इन्फॉर्म्ड अपने ज़्यादा रिलेटिव्स को कि मैं जॉब छोड़ के ये प्रिपेयर कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कुछ, बट आई डू थिंक इट क्रिएट्स एन अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू Yes, absolutely. कि सबको पता है, एवरीवन नोज. अब जैसे मैं फेल भी कर रहा था तो इस स्टोरी अब मैं किसको क्यों ही बताता चलूँ कि मैं क्या है, बिकॉज आई डू थिंक कि नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन योर हार्ड वर्क, everyone is interested in your success. Yes. Kind of, they want to know your hard work once you are successful. Kind of. तो इट्स बेटर कि आप अपने जो आपके क्लोज लोग हैं उनको बता के रखो. दे शुड नो कि आप क्या कर रहे हो. दे शुड सपोर्ट यू काइंड ऑफ इन योर जर्नी, एंड दैट्स अ लाइक मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी एंड फॉर एवरीवन. आई गेस most of us are doing this not for us only, oneself only, for our parents, family and our loved ones, as well as our mentors also, because they don't expect anything from us. They just want ki they can be a part of the success which we are achieving. So Absolutely. And finally, if you would, because majorly आपने 2 type से preparation की Yes, है, sir. if you would like to say a few words to all the mentors and everything that Yes, was sir. provided Yes, sir. to you. So thanks a lot to all the mentors. Specifically, I would like to mention Kritika ma'am as well as Jalat sir, because economics and management, both of the subjects were completely new. Because commerce, accountancy, costing and companies act, somewhat they were in my curriculum. Maybe the question structure which were asked in CA are different than this, because यहाँ पे theory ज़्यादा पूछते हैं, वहाँ it was completely practical. But economics and management completely new. Economics 2015 में लास्ट पढ़ा था, so I had no information about it. And the way they teach, the MCQs they cover, the explanation they give for it is like quite commendable. इतना अच्छे से समझ, like एक मॉडल है ISLM मॉडल, मुझे बहुत डर लगता था वो जब भी आता था, पर कृतिका मैम ने उसको भी इतने ईजी से समझाया है. एंड आई डू थिंक आई डू लाइक, मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी सक्सेस है उनके बिना तो नहीं हो पाती, काइंड ऑफ. और जो आई गिव द क्रेडिट दैट बुक ऑल्सो, दैट 1900 MCQ बुक्स, उसके अंदर भी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं. लाइक इट्स जस्ट अ बुक, बट वो आपको कहाँ तक सक्सेस में पार्ट बन सकता है, इट्स लाइक जब आप उसको पूरा पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा. Great. And any final message to all the aspirants जो अब आगे prepare करेंगे for these exams, what would you like to say? सर आई वुड लाइक टू से फर्स्टली एनालाइज योर सेल्फ. एक सर ये कोट है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं और जो लोग ये हम सोचते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, वो यूजुअली सही ही होते हैं. तो फर्स्टली आप सोचो कि ये आप कर सकते हो. अगर आप ये सोचोगे कि आपसे नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपसे नहीं होने वाला, बिकॉज आपके अंदर से ही वो फीलिंग आ रही है. फर्स्टली एक तो ये टफ है, इट्स नॉट लाइक दैट ईजी कि एवरीवन कैन डू इट, बट एटलीस्ट फर्स्ट यू नीड द ज़ील ना अंदर से कि आपको करना है करके. और जो एस्पिरेंट्स लाइक कुछ मार्जिन से रह जाते हैं, आई वुड स्टिल से कि डोंट लूज़ द होप. अगर आप इतनी आगे तक आए हो तो अगर आपको जब भी चांस मिले, मौका मिले, गिव इट अ ट्राई. मे बी अगर मैं भी रुक जाता तो मे बी आज मैं यहाँ पे नहीं होता. काइंड ऑफ इट्स जस्ट अटेम्प्ट्स. व्हेन आपका टाइम कब हो आपको पता नहीं होता. मे बी दैट वाज नॉट माय टाइम, दिस वाज माय टाइम. सो गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स. So we just have to give our part. We just have to play our part. Rest is in his hands. So just have patience and believe, and let's leave on him. He will do the best for us.
ग्रेट टू नो. तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आदित्य ने अपनी पूरी जर्नी हमें जो है समझाया. एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एट आर लर्निंग्स एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट? सो द थिंग इज टू कीप गोइंग एंड यू कैन लर्न such kind of things from the journey of Aditya. एंड ऑल्सो एनालाइज कि आपके जो वीक एरियाज़ क्या है या फिर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या, एंड वर्क ऑन दो स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड मूव अहेड, राइट? So it was great having you here, Aditya. Thank Once you, again, sir. congratulations from the side of Thank the you, sir. entire team of EduTap, and all the best for everything that you're going to do ahead. Thank you so sir. much for Thank you so coming. much for having me here. Thank you.